हेलो एवरीवन, स्टडी चैलेंजेस विथ मी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 9th स्टैंडर्ड का साइंस का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम पर। यह वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 3 है। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। स्टूडेंट्स, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, वी विल discuss about the chapter structure of the atom part 3. Here we will discuss about the topic anode rays and discovery of protons. In 1886, the famous scientist Goldstein noticed that when a perforated cathode was used in the discharge tube, another set of rays traveling in a direction opposite to that of cathode rays, that is from anode towards the cathode, which is seen in this figure. Goldstein called these rays as canal rays, since these pass through the holes or canals in the cathode. Later on, these rays were named as positive rays or anode rays. So here is the figure about the rays traveling in opposite direction, which we can see here. These are the cathode rays, these are positive rays, and their directions are opposite. It is an anode and it one is the perforated cathode. Now we will discuss about properties of anode rays. The first point about the properties of anode rays is anode rays travel in a straight line. Second, they consist of minute material particles and hence produce mechanical effects. Third point, they are made up of positively charged particles. Fourth point is positive rays are deflected by electric and magnetic fields but in a direction opposite to that of cathode rays. This means that these rays consist of positively charged particles called protons. Fifth point is these rays produce fluorescence on a zinc sulfide screen. Sixth point, their E by M, that is charge to mass ratio, E by M. The charge to mass ratio differs from gas to gas. Its value is much less than that of electron and is maximum when hydrogen is taken in the discharge tube. Now we will discuss about properties of protons. First point, a proton possesses a unit positive charge of the value which is equal to 1.602 into 10 to the power minus 19 coulombs. Second point, its mass is same as that of a hydrogen atom. 1 AMU, that is 1837 times the mass of an electron, which is 1.672 into 10 to the power minus 24 gram. Third
point, the proton resides in the central part of an atom, that is in the nucleus. Students, अभी हम चर्चा करेंगे एनोड किरणें एवं प्रोटॉन के खोज के बारे में। 1886 ईस्वी में वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने ये ध्यान दिया था कि जब एक छिद्रित कैथोड का इस्तेमाल किया जाता है एक निर्गत नली में, तब एक दूसरे तरह के किरणें गमन करते हैं कैथोड किरणों की विपरीत दिशा में, अर्थात एनोड से कैथोड की ओर, जो इस चित्र में दिखाया गया है। उन्होंने इन किरणों का नामकरण किया कैनेल किरणों के नाम से, क्योंकि ये छिद्र से होकर गुजरते हैं, अथवा कैनेल यानी नहर से कैथोड में। बाद में इन किरणों का नामकरण किया गया धनात्मक किरणों अथवा एनोड किरणों के रूप में। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि किरणें गमन कर रहे हैं विपरीत दिशा में। अब हम चर्चा करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, अर्थात एनोड किरणों के गुणों के बारे में। पहला गुण है एनोड किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। दूसरा गुण है इनमें मौजूद होते हैं पदार्थ के छोटे छोटे कण, इसलिए यांत्रिक प्रभाव पैदा करते हैं। तीसरा बिंदु है इन किरणों का निर्माण होता है धनात्मक आवेशित कणों से। चौथा बिंदु है धनात्मक किरणें विक्षेपित होते हैं विद्युतिक एवं चुंबकीय क्षेत्रों के द्वारा, किंतु दिशा में ये कैथोड किरणों के विपरीत होते हैं। इसका अर्थ ये है कि इन किरणों में मौजूद होते हैं धनात्मक आवेशित कण, जिसे हम कहते हैं प्रोटॉन। पांचवा बिंदु है ये किरणें जिंक सल्फाइड के पर्दे पर प्रतिदीप्ति का निर्माण करते हैं। और छठा बिंदु है इनका E/m अर्थात द्रव्यमान अनुपात के लिए आवेश भिन्न होते हैं एक गैस से दूसरे गैस में। इसके मान बहुत ही कम होते हैं एक इलेक्ट्रॉन से, एवं अत्यधिक होते हैं जब हाइड्रोजन गैस को लिया जाता है निर्गत नली में। धनात्मक किरणों की उत्पत्ति होती है हाइड्रोजन गैस के साथ, तथा ये धनात्मक आवेशित कण की अस्तित्व को प्रमाणित करता है। धनात्मक आवेश का मान इस कण पर समान होता है और ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन के अर्थात +1 और -1 के विपरीत दिशा में इस कण को प्रोटॉन कहा जाता है। हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होते तथा इसे दर्शाया जाता है 1H1 के रूप में। अब हम चर्चा करेंगे प्रोटॉन के गुणों के बारे में। पहला गुण है एक प्रोटॉन में एक इकाई धनात्मक आवेश में मौजूद रहते हैं, जिसका मान होता है 1.602 into 10⁻11 कूलम्स। दूसरा गुण है इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के समान होता है 1 AMU अर्थात 1837 गुना एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से, जो होता है 1.672 into 10⁻24 ग्राम।
और तीसरा गुण है कि प्रोटॉन मौजूद रहते हैं परमाणु के केंद्रीय भाग में, अर्थात परमाणु के न्यूक्लियस यानी नाभिक में। नाउ वी विल discuss about the discovery of neutrons. First of all, we will explain about neutron. A neutron is a fundamental subatomic particle with no charge and mass almost equal to the mass of the proton. We know that an atom contains electrons and protons, and that the atomic mass of an electron is negligible. Therefore, an atom of helium which contains 2 protons should have mass equal to 2 into 1 AMU is equal to 2 AMU. AMU stands for atomic mass unit. Both the atomic mass of helium atom was found to be approximately 4 AMU. It was therefore proved that in the nucleus of an atom there is another particle called a neutron, which possesses no electrical charge but is almost of an equal in mass as the proton. It was in 1932 Chadwick discovered a type of neutral particle which is called neutron by bombarding light nuclei like beryllium with alpha particles, that is helium nuclei. So here is the given figure. It is polonium alpha source, this one is beryllium, it is paraffin, and this one is an ionization chamber, and these are neutrons. Now we will discuss about properties of neutrons. The properties of neutrons are: number 1, this particle was not found to be deflected by any magnetic or electric field, proving that it is electrically neutral. And second point, its mass is equal to 1.676 into 10 to the power minus 24 gram. After the discovery of protons, neutrons and electrons, these are called subatomic particles, it is found that all atoms have a similar following basic structures. Number 1, protons are positively charged particles that are found in the nucleus of an atom. Second, neutrons are electrically neutral particles that are also found in the nucleus, and neutrons are slightly heavier than protons. And another one subatomic particle, electron, are negatively charged particles that are found outside of the nucleus, which we have discussed in our previous classes. Students, अभी हम चर्चा करेंगे न्यूट्रॉन के खोज के बारे में, अर्थात आविष्कार के बारे में। सबसे पहले जानकारी लेंगे न्यूट्रॉन के परिभाषा के बारे में। न्यूट्रॉन एक मौलिक उपपरमाणविक आवेशहीन कण है। इसका द्रव्यमान लगभग समान होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान का। हम जानते हैं कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स तथा प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं एवं एक इलेक्ट्रॉन का पारमाणविक द्रव्यमान ना के बराबर होता है, अर्थात नगण्य है।
अतः हीलियम के एक परमाणु में 2 प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं तथा इनका द्रव्यमान होता है 2 AMU अर्थात परमाणु द्रव्यमान इकाई। परंतु एक हीलियम के परमाणु का परमाणुविक द्रव्यमान लगभग 4 AMU यानी परमाणुविक द्रव्यमान इकाई होता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि परमाणु के नाभिक में एक अन्य कण मौजूद होते हैं जिसे न्यूट्रॉन कहा जाता है, जिसमें कोई विद्युतिक आवेश मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान का बराबर होता है। 1932 ईस्वी में वैज्ञानिक चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था। इन उदासीन कणों का खोज किया गया था प्रकाश नाभिक बमबारी जैसा कि बेरिलियम का अल्फा कणों के सहित। उदाहरण स्वरूप हीलियम के नाभिक। अभी हम चर्चा करेंगे न्यूट्रॉन के गुणों के संदर्भ में। पहला गुण यह है कि ये कण किसी भी तरह के विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं पाया गया था, जिससे यह प्रमाणित होता है कि ये विद्युतीय दृष्टि से उदासीन होते हैं। दूसरा बिंदु है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.676 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम का समान होता है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे उप परमाणुविक कणों के खोज यानी आविष्कार से यह पता चला कि सभी परमाणु में एक ही जैसा बुनियादी संरचना होते हैं। पहला बिंदु इसका कि प्रोटॉन्स धनात्मक आवेशित कण होते हैं जो कि किसी परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, और न्यूट्रॉन्स होते हैं विद्युतीय रूप से उदासीन कण तथा ये भी परमाणु के नाभिक में ही मौजूद होते हैं। न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स के तुलना में थोड़े से भारी होते हैं। और तीसरा बिंदु है इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश युक्त कण होते हैं तथा ये मौजूद होते हैं परमाणु के नाभिक के बाहर। Now we will discuss about atom, its structure. The atom is built up of a number of subatomic particles. The 3 subatomic particles of great importance in understanding the structure of an atom are electrons, protons and neutrons. In this figure, here is showing structure of an atom. These are orbits. Electrons revolve in orbits or shells. It is a nucleus. It contains protons and neutrons. So there are 2 structural parts of an atom: the nucleus and its empty space in which there are imaginary paths called orbits. So first of all we will discuss about nucleus. The protons and neutrons, collectively called nucleons, are found in the central part or nucleus of the atom, and another one is orbits. It is the imaginary path where electrons revolve around the nucleus of the atom. अभी हम चर्चा करेंगे परमाणु तथा इसके संरचना के बारे में। एक परमाणु का निर्माण होता है कई संख्यक उप परमाणुविक कणों के द्वारा। 3 उप परमाणुविक कण जिससे किसी परमाणु के संरचना को समझ पाते हैं वह है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स।
तो इस चित्र में एक परमाणु के संरचना को दिखाया गया है। ये कक्षाएं हैं जिसे हम ऑर्बिट्स या सेल्स कहते हैं, और इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ घूमते रहते हैं। और ये दर्शाया गया है नाभिक को, यानी न्यूक्लियस को। नाभिक, परमाणु के नाभिक में मौजूद होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अर्थात परमाणु का नाभिक धनात्मक युक्त होता है, धनात्मक आवेश युक्त होता है। किसी भी परमाणु के दो संरचनिक भाग होते हैं, एक है नाभिक, दूसरा है कक्षाएं। नाभिक तथा इसके खाली जगह जिसमें कई काल्पनिक पथ होते हैं, जिसे हम कक्षा कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से पाया जाता है, और प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, तथा ये परमाणु के केंद्रीय भाग अथवा नाभिक में पाया जाता है। दूसरा है कक्षाएं यानी ऑर्बिट्स और सेल्स। ये एक काल्पनिक, ये जो हम देख रहे हैं ये सभी काल्पनिक पथ है, जहां इलेक्ट्रॉन्स परमाणु के नाभिक के चारों तरफ घूमते रहते हैं। Now we will discuss about properties of subatomic particles. Three subatomic particles are electrons, protons, and neutrons. The symbol of electron is 1e to the power 0 or e negative charge, and its charge electronic unit is -1, and its mass is 1/1840, and its grams AMU is 9.1 into 10 to the power -28 grams. Second particle proton symbol is H1 or P plus. Its charge is +1 and its mass is 1, and its grams AMU is 1.6 into 10 to the power -24 grams. Third particle name is neutron. Its symbol is N, 0 to the power 1 or N, and its charge is 0 because it is chargeless, and its mass is same as proton 1, and its grams AMU is same as proton 1.6 into 10 to the power -24 ग्राम्स। अभी हम चर्चा करेंगे उपपरमाणविक कणों के गुणों के बारे में। ये उपपरमाणविक जो कण होते हैं उनका नाम इस प्रकार है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के चिन्ह होते हैं 1e to the power 0, यानी ये -1 होते हैं, -1 e to the power 0 और e नेगेटिव चार्ज। इसका आवेश होता है -1, इसके द्रव्यमान होते हैं 1/1840, और ये ग्राम परमाणुविक द्रव्यमान इकाई में होते हैं 9.1 into 10 to the power -28 ग्राम्स। दूसरा उपपरमाणुविक कण का नाम है प्रोटॉन। इसका चिन्ह होता है 1H1 और P प्लस। ये धनात्मक आवेश युक्त होते हैं और इनका आवेश होता है +1, और इनके मास होते हैं 1,
और ग्राम्स में 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। तीसरा कण का नाम है न्यूट्रॉन। इसके चिन्ह होते हैं 0 n⁻1 और n ये उदासीन होते हैं, इनका कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए इसका चार्ज है 0 और इनके मास होते हैं प्रोटॉन के बराबर 1 और इसका ग्राम्स में पारमाणविक द्रव्यमान इकाई में ये प्रोटॉन के समान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। Students, we will discuss about comparison of Dalton's atomic theory with the modern atomic theory. First, Dalton's atomic theory and second, modern atomic theory. In Dalton's atomic theory, atoms are indivisible particles, and in modern atomic theory, atoms are divisible into subatomic particles like protons, electrons and neutrons. Second point, atoms can be neither created nor destroyed. Here, atoms can be created and destroyed by nuclear fusion and fission. Third point, the atoms of an element are alike in all respects, but they differ from the atoms of other elements. Here, third point, the atoms of an element may not be alike in all respects, as is seen in the case of isotopes. Fourth and last point is, atoms follow the laws of chemical combination to form compounds, and in modern atomic theory, the last point is, in the formation of organic compounds, the laws of chemical combination are not always followed. अभी हम चर्चा करेंगे डाल्टन्स का परमाणु सिद्धांतों के साथ आधुनिक परमाणु सिद्धांतों के तुलना के बारे में। यह है डाल्टन्स परमाणु सिद्धांत और यह है आधुनिक परमाणु सिद्धांत। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी परमाणु होते हैं अविभाज्य कण, और आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणुओं का विभाजन होता है उपपरमाणुविक कणों के द्वारा, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। दूसरा बिंदु है परमाणुओं का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत में परमाणुओं का निर्माण तथा विनाश होता है परमाणु संलयन और परमाणु विखंडन के द्वारा। तीसरा बिंदु है किसी तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं सभी के लिए समान रूप से, लेकिन यह दूसरे तत्वों के परमाणु से भिन्न होते हैं। तीसरा बिंदु आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार किसी तत्व के सभी परमाणु एक जैसे नहीं होते हैं, सभी के लिए समान रूप से, जैसा कि देखा गया है समस्थानिक के मामले में। चौथा बिंदु है डाल्टन्स परमाणु सिद्धांत का सभी परमाणु अनुसरण करते हैं रासायनिक संयोजन के नियमों को तथा निर्माण करता है यौगिकों का। आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार चौथा बिंदु है जैव यौगिकों के निर्माण में रासायनिक संयोजन के नियमों का सर्वदा पालन नहीं किया जाता है। Now we will discuss about atomic number. Atomic number is represented in capital Z, and an atom of an element has its own characteristic number of protons in its nucleus, which distinguishes it from the atoms of other elements. This characteristic number means number of protons
is called the atomic number of the element. The atomic number is denoted by the letter Z. The atomic number is therefore equal to the number of electrons in the atom of an element as well, since in a neutral atom number of protons equal to number of electrons. The number of protons gives the total positive charge present in the nucleus of an atom. So, the atomic number of an element is the number of protons present in the nucleus of its atom, electrons present in its atom, and positive charge in the nucleus of its atom. Now we will discuss about mass number. It is generally denoted by the capital letter A. The mass number of an element is the total number of protons and neutrons present in its atomic nucleus, and mass number is denoted by A. The mass number, however, is a whole number approximation of the atomic mass calculated in atomic mass unit, which is generally represented AMU. स्टूडेंट्स, अभी हम चर्चा करेंगे परमाणु संख्या के बारे में। परमाणु संख्या क्या है? किसी तत्व के एक परमाणु में मौजूद होते हैं इसके अपने विशेषता युक्त प्रोटॉनों की संख्या इसके नाभिक में मौजूद होते हैं, जो इसे दूसरे तत्वों के परमाणुओं से पृथक करते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद होते हैं प्रोटॉनों की संख्या को किसी तत्व का परमाणु संख्या कहा जाता है। परमाणु संख्या को Z के द्वारा चिन्हित किया जाता है। परमाणु संख्या किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के संख्या के बराबर होता है। एक उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों के संख्या से। प्रोटॉनों की संख्या संबंधित होता है संपूर्ण धनात्मक आवेश से जो एक परमाणु के नाभिक में मौजूद रहता है। किसी भी तत्व के परमाणु संख्या वो संख्या है, यानी वो संख्या होता है जो परमाणु के नाभिक में मौजूद होते हैं प्रोटॉनों की संख्या। इसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। परमाणु के नाभिक में धनात्मक आवेश मौजूद रहता है। अभी हम चर्चा करेंगे मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या के बारे में। किसी तत्व के द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स की संख्या जो मौजूद होते हैं इसके परमाणविक नाभिक में। द्रव्यमान संख्या को A के द्वारा चिन्हित किया जाता है। द्रव्यमान संख्या एक संपूर्ण संख्या है। परमाणविक द्रव्यमान का गणना किया जाता है परमाणविक द्रव्यमान इकाई के द्वारा। स्टूडेंट्स, we will discuss about the distribution of electrons, electronic configuration, Bohr-Berry scheme. Electronic configuration refers to the distribution of electrons in different cells. The distribution of electrons into different cells or orbits
of an atom was suggested by Bohr and Berry. There are some rules which are followed for writing the number of electrons in different energy levels or cells. Number 1, the maximum possible number of electrons in a particular cell is given by the formula 2n square, where n denotes the serial number of that cell. First or K cell has 2 into 1 square is equal to 2 electrons. Second cell, L cell, has 2 into 2 square is equal to 8 electrons. Third or M cell has 2 into 3 square is equal to 18 electrons. Fourth or N cell has 2 into 4 square is equal to 32 electrons, and so on. Second point, electrons are not accommodated in a given cell unless the inner cell are filled, that is, the cells are filled in stepwise manner. And last point, however, the outermost cell of chemically stable atom can accommodate a maximum number of 8 electrons, except helium atom, which has only one cell and can accommodate a maximum number of 2 electrons only. अभी हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के वितरण के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोर-वेरी योजना के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अर्थ है अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स का वितरण। एक परमाणु के अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स का वितरण का सुझाव दिया गया था बोर-वेरी वैज्ञानिक के द्वारा। अलग अलग ऊर्जा स्तर ओ अथवा कक्षाओं में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ओ को कुछ नियमों के द्वारा लिखा जाता है। वह है, पहला, किसी विशेष कक्षा में मौजूद सर्वाधिक संभवतः इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दिखाया जाता है 2n स्क्वायर फॉर्मूला के द्वारा, जहां n उस कक्षा के क्रमिक संख्या को दर्शाता है। पहला या k कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरा या n कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तीसरा या n कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चौथा या n कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एवं इस तरह क्रम आगे चलते रहता है। दूसरा बिंदु है, जब तक अंदर की कक्षाएं संपूर्ण नहीं होते तब तक इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में शामिल नहीं होते, अर्थात कक्षाएं चरणवार तरीके से संपूर्ण होते हैं। और तीसरा बिंदु है, तथापि रासायनिक स्थिर परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में सर्वाधिक 8 इलेक्ट्रॉन्स शामिल होते हैं, हीलियम एटम को छोड़ के, जिसमें केवल मात्र एक कक्षा होता है तथा इसमें सर्वाधिक 2 इलेक्ट्रॉन्स शामिल होते हैं। और इस चित्र में अलग अलग ऊर्जा स्तरों को दिखाया गया है। पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा ऊर्जा स्तर, तीसरा ऊर्जा स्तर, चौथा ऊर्जा स्तर, और ये परमाणु के नाभिक है। ये पहला ऊर्जा स्तर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 दूसरा ऊर्जा स्तर में 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तीसरा ऊर्जा स्तर में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चौथा ऊर्जा स्तर में 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस चित्र में इलेक्ट्रॉन्स का वितरण को अलग अलग कक्षाओं में
दर्शाया गया है। तो कैसा लगा आज का वीडियो? यदि इस विषय पर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो स्टूडेंट्स प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। प्लीज सपोर्ट मी। थैंक यू।